جناب خلیل صاحب سے جو میرپور آزاد کشمیر سے حال برمنگھم سے تشریف لائے ہیں، ان سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں۔ میرپور سے؟ اچھا، منگلے کے قریب رہتے ہیں کہیں؟ جی، منگلہ ڈیم کے پاس ہی کہیں ہے آپ کا علاقہ؟ بالکل منگلہ ڈیم کے پاس۔ اچھا، حضور سوال یہ ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ کوئی حکومت کسی مذہبی فرقہ کو اقلیت یا غیر مسلم قرار دے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں احمدی مسلمانوں کو اس لیے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے کہ احمدی مسلم تعلیم یافتہ ہیں اور خدمت خلق کے ذریعے پاکستانی عوام کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ملکی اور غیر ملکی حکومتیں یہ نہیں چاہتی کہ احمدی مسلم یہ کام کر سکیں۔ کیا یہ میرا خیال درست ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ 100% درست ہے۔ اصل بات جیلسی ہے۔ دیکھیں، آپ مسلمانوں کی میں سے علماء کی وہ تحریک جو خالصتاً احمدیت کی مخالفت پہ شروع سے وقف رہی ہے، ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ وہ ہر کوشش کے بعد، اپنی ناکامی کو محسوس کرنے کے بعد یہ سمجھ چکے کہ جو ہتھیار ہم نے احمدیت کو روکنے کے لیے استعمال کیے وہ کارگر نہیں ہوئے، احمدیت اس سے باہر نکل گئی، اور ان کا ایٹیچیوڈ سٹف ہوتا چلا گیا، اور زیادہ سٹف ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے سوچا کہ اگر قانون ان کو، ملکی قانون ان کو غیر مسلم قرار دے دے تو اتنی بڑی دیوار حائل ہو جائے گی ان کے ارد گرد کہ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس دیوار کو پھلانگ کر پھر احمدیت میں داخل ہو۔ یہ بہت صحیح تجزیہ آپ نے فرمایا ہے۔ یہ دیکھنے کی وجہ، ان کا یہ مقصد نہیں کہ خدمت خلق نہ ہو، ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کے اندر کردار ایسا پیدا ہو چکا ہے جو اپنے کردار سے کھینچتی ہے، اور کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے اس کی جو نشو و نما ہے اس کو روک سکیں۔ اس پر وہ دیواریں کھڑی کرتے رہے، پہلے چھوٹی پھر اور بڑی، پھر انہوں نے دیوار یہ بنائی کہ غیر مسلم قرار دے دو، وہ بھی فیصلہ ہو گیا۔ جب غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ ہوا تو یہ بھٹو صاحب کے دور میں 84 کی بات ہے، اچھا 74 کی بات ہے۔ 74 سے لے کر جو بعد کے 10 سال آئے ہیں، انہوں نے احمدیت کی رفتار کو تیز تر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں تک کہ وہ جب 84 میں فیصلہ ہو رہا تھا حکومت کی طرف سے، یعنی کارروائیاں مکمل ہو رہی تھیں، تو اپریل کے آخری دنوں میں میں اسلام آباد تھا، اور مجھے بھنک پڑ چکی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، تو میں وہاں پہنچا ہوا تھا معلوم کرنے کے لیے قریب سے کہ آخر یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اس وقت حکومت کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ میری مجلس سوال و جواب میں آنے کے لیے پشاور تک سے ٹرک اور بسیں بھر بھر کے آ رہی تھیں، اور اسلام آباد سے دور دور تک 100 200 میل سے لوگ یہ پتہ کر کے کہ امام جماعت احمدیہ وہاں پہنچا ہوا ہے اور اس کی مجلس میں ہر ایک کو کھلا سوال کرنے کی اجازت ہے، علماء بھی آ رہے تھے اور دوسرے بھی آ رہے تھے۔ اب یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ حکومت نے دفعہ 144 لگا کر ان لوگوں کے رستے روکے اور کہا کہ ان کو یہاں پہنچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم باطل تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ علماء بیچ میں داخل کرتے اور وہ کھلے سوال کر کے اس مجلس میں جس میں میں پابند تھا سب کو جواب دینے کا، اس میں ہمیں جھوٹا ثابت کرتے۔ یہ آن ریکارڈ بات ہے، یہ تو حکومت کے جو ریکارڈ ہے ان کو کوئی اب تبدیل نہیں کر سکتا، یہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ جو اٹک پہ پوسٹ تھی برج پہ، اس پر 3 بسیں پٹھانوں کی واپس کی گئیں جو قبائلی علاقے سے یا دوسری جگہوں سے اس مجلس میں شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے، لیکن کمزوری کا حال یہ تھا کہ پھر بھی مسجد بھر جاتی تھی اور اچھل جاتے تھے لوگ باہر۔ حالت یہاں تک پہنچی، میرے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے بڑی دلچسپ، کہ میں نے کہا کہ جس ملٹری کے حوالے سے احمدیت کو دراصل غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، یعنی اسلام سے باہر قرار دیا گیا ہے، وہاں مجلس لگنی چاہیے۔ چنانچہ وہ
जो मिलिट्री का दायरा है रावलपिंडी के से एक तरफ, क्या इलाका वो कहलाता है जो पिशावर रोड के इर्द गिर्द है, हाँ कैंट का इलाका, वहाँ मजलिस लगाई, वहाँ इनके जर्नैल आए, वहाँ इनके ब्रिगेडियर्स आए, वहाँ हर तबके के अफसरान आए, उनकी रिकॉर्डिंग हुई और वो वीडियो हमारे पास महफूज है। वो अफसरान जिन्होंने शुरू में बढ़ बढ़ कर सवाल किए और साबित करना चाहा कि हुकूमत ने जो इक़दाम किए थे वो दुरुस्त थे, मेरे जवाब के आखिर पर बाद उनमें से आपको रोते हुए दिखाई देंगे, और एक भी सर नहीं था आखिर पे जो यूं हिल रहा था, सब ताईद में हिल रहे थे। ये वो चीज थी जिसने पैनिक क्रिएट की है, और वो फैसले जो हो सकता है कुछ ताखीर से होते, वो अफरा तफरी में जल्दी किए गए हैं। फिर तो असल बात यह है कि मुखालफत यानी उलमा की तरफ से जो मुखालफत हुआ करती है इलाही जमातों की, उसकी दरअसल बुनियाद अकीदे के इख्तलाफ से बढ़कर जेलसी पर होती है, और यही मुखालफत की वजह हजरत मसीह के ज़माने में मौजूद थी। वरना कौन सा ऐसा अकीदा आपने पेश फरमाया था जिस पर क़यामत बर्पा हो जाती? यही था ना कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा आगे कर दो। इसमें कौन सी खतरनाक बात है? मगर उस वक्त के उलमा जानते थे कि यह इनकलाबी बात है। हालात ऐसे पक चुके हैं कि अब यही अकीदा है जो पनपेगा और जुल्म का अकीदा अब नहीं चल सकता। वही सूरत हाल अहमदियत ने अमलन इस्लाम के दायरे में पेश फरमाई, और उससे घबरा कर उलमा ने एक के बाद दूसरी कोशिश की। फिर ज़ियाद साहब तशरीफ ले आए और ये वाक़या हो गया कि इनको इस्लाम मुसलमान कहलाने की इजाज़त नहीं, कलमा पढ़ने की इजाज़त नहीं, मुसलमानों की तरह चलने फिरने की इजाज़त नहीं है, मस्जिद को मस्जिद कहने की इजाज़त नहीं, अजान देने की इजाज़त नहीं। ये सब कुछ किया ना। ये करने के बाद अमलन क्या किया? अमलन ये किया कि 100% साबित कर दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके साथियों से अगर किसी को मुशाबियत है तो सिर्फ जमात अहमदिया को है, इसके सिवा कुछ हासिल न कर सके। क्योंकि इसके नतीजे में फिर कसरत से लोग अहमदी हुए कि अब हमें समझ आ गई है कि 72 फिरके कौन थे और 73वां कौन है। इसकी मंतक आप समझें तो आप हैरान होंगे, बहुत गहरी बात है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद की तरह मेरी उम्मत 72 फिरकों में बढ़ जाएगी, ठीक है, एक 73वीं जमात होगी, जैसा कि मसीह ने एक 73वीं जमात पैदा की थी। वो 73वीं जमात दुरुस्त है। जब पहचान पूछी गई कि कैसे पता चले कि इन 73 की थैली में से 73वीं कौन सी है और 72 कौन है, तो बड़ा मुश्किल सवाल था। क्योंकि जैसे अभी आपसे पहले मिर्जा साहब ने सवाल फरमाया है कि सारे अंडे ही कहलाते हैं ना, मुसलमान सब अंडों की शक्लें एक जैसी हैं, हमें क्या पता कौन सा अंडा गंदा और कौन सा ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सवाल किया गया। इसमें आपकी शान रसालत और फरासत दिखाई देती है। इतना मुश्किल सवाल नजर आया कि यूं लगता है कि इसका जवाब हो ही नहीं सकता कि या रसूलुल्लाह वो 73वीं जमात कैसे पकड़ी जाएगी, कैसे पहचानी जाए? आप तो कहते हैं सब मुसलमानों के ही फिरके होंगे। जवाब सुनिए, आपने फरमाया मां अना अलैहि व अस्हाबी, कोई पहचान मुश्किल नहीं। जिस हालत पर तुम मुझे और मेरे सहाबा को देख रहे हो, उन 73 में से हर एक की वो हालत नहीं होगी, सिर्फ एक की होगी, बाकी सब की हालत उनसे जुदा होगी। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का क्या हाल था? पहला हाल यह था कि कलमा नहीं पढ़ने दिया जाता था, और मक्के की गलियां उनके ऊपर बहने वाला खून गवाह है कि सहाबा को इस जुर्म में बहुत अजियतनाक सजाएं दी गई कि ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा नहीं पढ़ना। दूसरा, मुसलमान कहलाने की इजाजत नहीं थी। हजरत उमर ने भी जब ऐलान किया और दूसरे बाज़ बुजुर्गों ने जब खाना काबा के पास जाकर ऐलान किया हम मुसलमान हैं, इस बात पर मार नहीं पड़ी कि तुमने दीन बदला है, इस बात पर मार पड़ी कि तुम मुसलमान क्यों कहते हो अपने आप को? हम तो तुम्हें साबी कहते हैं, मिर्जाई कादियानी नहीं, उसी किस्म को मारो वहां भी जारी था, तो तुम अपने आप को साबी कहो, हमें कोई तकलीफ नहीं, मुसलमान नहीं कहने देना। और ये एक झगड़ा शुरू हो गया।
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे तो नमाज से रोका जाता था और कहा था हम ये नमाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुरान करीम फरमाता है अरायतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, तूने उस बदबख्त का हाल नहीं देखा जो खुदा का बंदा उसकी इबादत के लिए खड़ा होता है और वो रोक रहा है। किसी का क्या हक है उसको इबादत से रोके। ये हालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की थी। हजरत अबू बकर के शहर में मस्जिद बनी और दुश्मनों ने दीवार तोड़कर उस मस्जिद को मुनज़्ज़म कर दिया कि तुम्हें मस्जिद बनाने का कोई हक नहीं है। हज आपके अकायद में दाखिल था, हज की ग़ज़्व गायत थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी फरमानी थी, लेकिन सुलह हुदैबिया के मैदान में क्या हुआ है, हज से रोक दिया गया। ये इलामतें हैं ना। अब तारीख़ इस्लाम पर नजर डालें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक एक भी इस्लामी फ़िरक़ा नहीं है जिसको कलमा कहने से जबरन रोका गया हो। एक भी इस्लामी फ़िरक़ा नहीं है जिसको नमाज पढ़ने से रोका गया हो। नमाज की तर्ज में इख्तलाफ पर फसाद हुए हैं, नमाज पढ़ने से कभी नहीं रोका गया। हज से नहीं रोका गया, मस्जिदें बनाने और मस्जिदें कहने से नहीं रोका गया, अजान देने से नहीं रोका गया। यहाँ तक कि शिया अजान में तो अलीउल सफ़ीउल्लाह वगैरह किस्म के अल्फाज भी मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों ने बर्दाश्त किया है। अजान कहने से नहीं रोका। ये सारी बातें 84 में पूरी तरह सजा बनकर अहमदियों के ऊपर नाफिज हुई हैं। बाज आ जाओ कलमा पढ़ने से वरना मार पड़ेगी, कलमा पढ़ोगे तो मौत की सजा है। हम इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक समझते हैं कि अहमदी ये कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये तमाम बातें अहमदियत के हक में यकजा हुई या नहीं हुई। अगर हुई तो वो जो आखिरी कफन कील ठोकने वाला था, इन कॉफिन कहते हैं ताबूत को, वो ज़िया साहब ने अपने हाथ से ठोक दिया। उसके अंदर क्या था? 72 फिरके। सब मुत्तफिक हो गए कि अहमदी अलग हम अलग। हम जो मर्जी इख्तिलाफ कर लें, हमें गैर मुस्लिम ना कहना, हमारी नमाजें ना रोकना, हमारे कलमे ना रोकना, हमारी तर्ज इबादत पर एतराज न करना। हम सब अब एक हो चुके हैं। एक ही गम था जिसे हमने निकाल के बाहर फेंक दिया है। यही फैसला हुआ है ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फैसला था? जब 72 होंगे और एक होगा तो सच्चा कौन होगा? 72 के एक। और इनका फैसला क्या है? 72। तो वो फैसला किया इस्लाम के नाम पर, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर के खिलाफ पहली मुनज़्ज़म बगावत है आलम इस्लाम की। कभी इससे पहले आलम इस्लाम हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह के किसी फैसले के खिलाफ बगावत में मुलव्वस नहीं हुआ। इत्तेफाक एक फिरके के बाद अकीदों को बाग़ियाना अकीदा समझा गया, मगर इत्तेफाक इजमा, यहां वो इजमा आपको दिखाई देता है जिसका कोई तोड़ कोई हल और नहीं है। तमाम फिरकों ने फैसला किया कि जमात अहमदिया दायरा इस्लाम से खारिज है और सिर्फ यही दायरा इस्लाम से खारिज है। बाकी तमाम फिरके जो चाहे अकीदे रखते फिरें वो इस्लाम के 72 के थैले में दाखिल हैं। यही तो बहस थी कि बाहर कौन होगा और अंदर कौन होगा। ठीक है, मगर जेलसी की वजह से आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हुजूर, अब